Okay, beta. So enthalpy changes mein, yes. Before the first thing is a type of chemical reaction. So before I start doing the endothermic reaction, there's a difference between the term energy and enthalpy. ठीक है? Normally the chapter enthalpy changes कहलाता है. What's the difference between the term energy and enthalpy? ये आपको clear होना चाहिए. Basically enthalpy का मतलब होता है the energy content of a system. Energy content of a system. Whenever they ask you to define the word enthalpy, you just have to write it is the energy content of a system. देखो, in chemical energetics, we always deal with the system and a surrounding. अब पहले ये समझना जरूरी है कि what does the system mean, the surrounding का मतलब क्या है. सिस्टम का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स और उनकी इंटरनल एनर्जी. दैट्स बेसिकली कॉल्ड द सिस्टम. एंड द सराउंडिंग मींस एवरीथिंग एल्स रेदर देन दोज मॉलिक्यूल. जैसे अगर आपने HCl को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो एनर्जी ऑफ HCl मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड द एंथैल्पी. और उसके अलावा जो कुछ भी आसपास है जिस वाटर में आपने उसे डिसॉल्व किया है, द सराउंडिंग, द कंटेनर, दैट्स बेसिकली कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग. तो फायदा क्या है टर्म एंथैल्पी यूज करने का? फायदा ये है कि अगर मैं एनर्जी टर्म यूज करूंगा, देन यू हैव टू आस्क मी कि सर फर्दर क्लैरिफाई करें कि आइदर यू आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम और एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग. But if I use the term enthalpy, it means that we are talking about the energy of the system only, like the energy of molecules. And change in enthalpy, which is called delta H. याद है ना, O levels में पढ़ा था. This is basically enthalpy of product minus enthalpy of reactant. पहले हमें ये दो बातें पता होनी चाहिए, और ये हमारा O levels का कॉन्सेप्ट है ना. डेल्टा H का मतलब क्या होता है? enthalpy of product minus enthalpy of reactant. Now I have a question. Why I'm not doing it reactant minus product minus reactant क्यों कर रहा हूं मैं? Why I'm not doing it reactant minus product minus reactant ही क्यों कर रहा हूं? याद रखिएगा कि डेल्टा, दिस डेल इज ऑलवेज द फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है ना? तो फाइनल वैल्यू क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एंड द इनिशियल वैल्यू इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है? नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, the reaction that absorb heat during the formation of product. ठीक है? They are called endothermic reaction. For all endothermic reaction, delta H is always positive. Why it is positive? Because energy is transferred from the system, from the surrounding to the system. Energy from the surrounding to the system. ठीक है? अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुई है. इट मींस दैट एंथैल्पी और द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सो जब आप डेल्टा H निकालने के लिए, इफ यू डू इट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा H का साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है? ये ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट हैं. प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं एंड द साइन इज ऑलवेज positive. ठीक है? So energy is transferred from the surrounding to the system because energy is required for the formation of product. ठीक है? यहाँ तक clear है? Now, if we talk about the energy profile diagram for an endothermic reaction. So yes, this is basically, these are the two axes. On the y-axis, we have enthalpy. Enthalpy has the same unit as energy. So it must be kilojoules, but we do it kilojoules per mole. Okay. And on the x-axis, there's nothing special. You can write reaction pathway.
यहाँ पर टाइम नहीं होता. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्शन पाथवे डायग्राम. रिएक्शन पाथवे मीन्स द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन दिस डायरेक्शन. So we remember that for an endothermic reaction, the energy of reactant, enthalpy of reactant कम होती है, product की enthalpy ज्यादा होती है, and then this is the case. ऐसे ही है ना? Now this is reactant and this is product. The difference of energy between reactant and product is called delta H. ज्यादा स्टेबल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्सोथर्मिक में भी स्टेबल होता है. ठीक है. सो एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल्स टू, इट इज पॉजिटिव. अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट किया, इट मींस इट इज पॉजिटिव. दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, and this one is the enthalpy of product. And from the reactant till the top of the peak, this one, ये क्या कहलाता है बेटा? This is called activation energy. ये कहलाती है activation energy. सही है? Clear? अच्छा. If you remember कि we usually draw the same diagram for a reaction with catalyst. तो क्या फर्क आता था डायग्राम में विद कैटलिस्ट? द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर डिक्रीजेस, ये थोड़ा सा कम हो जाता था. तो यहां से ये शुरू होता था इस तरह करके, एंड समवेयर इट्स अप टू यू, जितना दिल चाहे उतना ड्रॉ कर दीजिए. सो दिस इज बेसिकली EA with catalyst. ठीक बेटा. सो दिस इज EA with catalyst. You all know about this diagram. ठीक है. ये चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया है. बेसिक एंडोथर्मिक की डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में मैं नोट्स दे दूंगा, और एंडोथर्मिक की इंथैल्पी प्रोफाइल और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. सही है. एंड वी गोइंग टू डू द सेम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अब क्या करते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा. फॉर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन दैट रिक्वायर्ड हीट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, enthalpy or energy of product is always greater than the enthalpy of reactant. ये हमेशा, it is always valid for all endothermic reactions. सही है. So we started with the basic, this chapter with the basic type of chemical reaction. So the first type of reaction in terms of energetics is basically the endothermic reaction, the reaction that absorb heat during the formation of product. For all endothermic reaction, the delta H, which is the change in energy or change in enthalpy, is always positive. Energy is transferred from the surrounding into the system. ठीक है. और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होने की वजह से एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है. नाउ डू द सेम फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो द नंबर सेकंड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेल्टा H वैल्यू इज नेगेटिव. ठीक है. ये पॉजिटिव नहीं, दिस इज बेसिकली नेगेटिव. And for all exothermic reaction, we used to say that the energy is released during the formation of product. ठीक है बेटा. एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान. दिस इज कॉल्ड, for all exothermic reaction, enthalpy of reactant is greater than the enthalpy of product. So जब आप डेल्टा H निकालेंगे, which is enthalpy of product माइनस enthalpy of reactant, चूंकि माइनस के बाद वाली टर्म बड़ी है तो डेल्टा H का साइन आपके पास आएगा नेगेटिव. So for all exothermic reaction, the delta H value is negative. Second statement, हमने बताया एनर्जी इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. इसका एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड
from the system into the surrounding. ठीक है, और हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं आफ्टर सम टाइम द कंटेनर वॉल बिकम हॉट, है ना, वो आपको फील होने लगता है। एंडोथर्मिक में इट बिकम इट कूल डाउन। ठीक है, क्लियर? सो दैट्स हाउ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम the system into the surrounding. And if we try to draw, if we draw the enthalpy profile diagram for an exothermic reaction, is going to be the same. Now you have to draw this. Now enthalpy of reactant this time is more and the enthalpy of product is less. So this is reactant and this is product. And this is enthalpy of product. The delta H value is decreasing, and delta H value is negative. Okay? And again, this one is the activation energy value. EA, and this EA is without catalyst. And if we use a catalyst, तो हम इसकी catalyst वाली diagram भी draw कर लेते हैं. And somehow this one, the green line is the EA with catalyst. नहीं, activation is always, no matter you have endothermic reaction, no matter activation energy के बारे में you have to keep remember two things. पहली बात, activation energy हमेशा required होती है, positive होती है. You have to provide it no matter you have endothermic reaction, no matter you have an exothermic reaction, चाहे जो भी हो, energy हमेशा activation energy हमेशा positive value होती है. On this axis you have enthalpy, and we say that enthalpy is always in a kilojoules per mole, हमेशा kilojoules per mole में. ठीक है? For all exothermic reaction, enthalpy of reactant ज्यादा है, enthalpy of product कम है. That's why the delta H value is negative. Clear? So enthalpy. If I ask you, देखो, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट टिल द टॉप ऑफ द पीक. सही है. सो इफ इन दिस डायग्राम, ये जो आपके पास है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ बैकवर्ड रिएक्शन इफ इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, कहां से ड्रॉ करेंगे? सो वी ड्रॉ इट फ्रॉम हियर टिल द टॉप ऑफ द पीक. ठीक है, बात समझ आ रही है? If it is a reversible reaction, and if I ask you about the activation energy of a backward reaction, so we draw it from here till the top. सही है, क्लियर है, बात समझ आ रही है? अभी यहाँ मेंशन ना करें, we have lots of question in a past paper, हम वहां पर इसे कर लेंगे. And another thing, we all know that from our O levels concept, I'm back on endothermic reaction, that endothermic reactions required high temperature. Heating required होती है ना? Endothermic required high temperature. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर. ठीक है, so all endothermic reaction required high temperature, exothermic required low temperature. Let's move towards few questions. Okay,
यहाँ पे एक और चीज क्लियर होगी. क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ आवर वर्कशीट, इट सेज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड बाय टू स्टेप्स. ठीक है, stage 1, stage 2, and whenever any chemical reaction, कोई भी, it's proceed by two step, there must be two activation energy barriers. ठीक है, जो रिएक्शन दो स्टेप्स में होते हैं उनमें दो एक्टिवेशन एनर्जी होती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ सिंगल स्टेप. ठीक है, एंड बी वाला भी सिंगल स्टेप. ये दोनों क्या है? ये दोनों सिंगल स्टेप के मैकेनिज्म. तो ए और बी तो आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज इट सेज that the reaction is proceed by two steps. So either C or a D. Now it says the activation energy of stage 1. Stage 1 कौन सी है? ये वाला region. This is stage 1. इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी उसने मार्क करी है? एक्टिवेशन एनर्जी +50. तो हम यहां से यहां चेक करते हैं टॉप तक. इज इट +50? यस, इट इज +50. एंड द एंथैल्पी चेंज वैल्यू इज -100. तो देख लीजिए ये प्रोडक्ट है और दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली -100. सी, यही बात अप्लाई करते हैं. डू द सेम. द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर स्टेप 1 इन दिस रिएक्शन इज अराउंड 100 के करीब करीब मुझे लग रहा है. चलो अब कर लेते हैं. इट्स अराउंड 100. ठीक है, एंड एंथैल्पी चेंज वैल्यू इज -50. तो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन द राइट आंसर इज सी. ठीक है, तो की पॉइंट क्या है कि if a reaction is proceed by two steps, there are two activation energy barriers. There are two activation energy barriers. सही है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Now this one, it says four reactions of the type shown below, ठीक है, which is the correct enthalpy diagram reaction that will proceed most rapidly with the highest yield. मोस्ट रैपिडली का मतलब होता है, मोस्ट रैपिडली का मतलब फास्टर. फास्टर कब होगा? जब इसके पास लो एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू होगी, या स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी टर्म इज बेटर. ठीक है, व्हेन स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी और हाईएस्ट यील्ड, ये दोनों कंडीशंस जो हैं ज्यादातर फुलफिल करते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, so exothermic reactions are those reactions that can be proceed by a faster rate with a lower activation energy value. So A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, either C or D. C भी हो सकता है and D. Both are exothermic, but in D you can see the activation energy value is greater. ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे. Now this one, a good question. The reaction pathway diagram below, reaction pathway is enthalpy profile diagram. ठीक है, below illustrates the energies of the reactant product and the transition stage. Transition stage का मतलब वो जब collide करते हैं ना, तो before they convert into a product वो जो एक stage आती है ना, that's called the transition stage. आपने देखा है कोई चीज स्लो मूव में जब बहुत तेजी के साथ किसी चीज से कोलाइड करती है तो पहले वो थोड़ी सी कंप्रेस सी हो जाती है, फिर वो ब्रेक होती है. दस कंप्रेशन वाला जो स्टेज होता है दैट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेज. ठीक है, बात समझ आ रही है? नाउ द नेक्स्ट वन, व्हिच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन. नाउ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिकली दिस वन, है ना? इफ आई मार्क इट, इट इज दिस वन. फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. ये वैल्यू कैसे आ सकती है बताइए जनाब. बॉटम से लेके टॉप तक तो E1 है, और बॉटम से लेके E2 तक अगर मैं इसको इस वैल्यू में से विच इज E1 में से इस वैल्यू को माइनस कर दूं विच इज E2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. सो बेसिकली इट इज E1 विच इज टोटल फ्रॉम द बॉटम टिल द टॉप. ठीक है, E1 विच इज दिस वन, इसमें से मैं इस रीजन को विच इज E2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला रीजन आ जाएगा विच इज द एक्टिवेशन एनर्जी value. So the right answer is basically E1 minus E2. Okay, two step reaction. दो कन्वर्जन हो रहे हैं, x से y में जा रहा है, डेल्टा h पॉजिटिव है, y से z में जा रहा है, डेल्टा h इज नेगेटिव. टू स्टेप का मतलब दो ऑप्शन वैसे ही हमारे सॉर्ट आउट हो गए कि ये तो नहीं हो सकते. ठीक है, if I look at the reaction A,
दिस इज स्टेप 1 का रिएक्शन एंड दिस इज स्टेप 1 का प्रोडक्ट. So delta H value is positive for this one, step 1 के लिए, और step 2 के लिए the delta H value is, तो इसका मतलब first positive, second negative, A is the right answer. C में उल्टा है, C में step 1 negative और step 2 positive है, so that's vice versa. ठीक है, good. एक और क्वेश्चन दे, आई हैव अ प्रेडिक्शन के एमसीक्यू में ना ये जो हमारी थेल्वी प्रोफाइल है इसका एक आध एमसीक्यू लाजमी होते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस मैं थोड़ी ज्यादा करवा रहा हूं. देन वी मूव फॉरवर्ड. दैट्स द लास्ट क्वेश्चन गोइंग टू डू. द रिएक्शन पाथवे फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज शोन बिलो. Which statement is correct? The activation energy of the reverse reaction is plus 80. The enthalpy change for the forward reaction is plus 30. The enthalpy change for the forward reaction is plus 50. ओके, the enthalpy change for the reverse reaction is plus 30. ये सारे स्टेटमेंट हम बारी बारी चेक करते हैं. इससे the activation energy of a reverse reaction का मतलब they are talking about, so this से लेके this तक is 80 plus, that's the right answer. Excellent. ठीक है, this is the right answer. Now आगे चलते हैं. पहले मुझे बताओ कि the enthalpy change for the forward reaction is plus 30. forward reaction की enthalpy कितनी है? forward normal reaction की what is the enthalpy change of a normal reaction? I think it's minus 50. It's minus 50. और क्योंकि MCQ का पार्ट है, that's why they draw a double-headed arrow. तो हमने इसको कर दिया जनाब, that's the minus 50. The enthalpy change of the forward reaction is minus 50 again. यहाँ तो यही आ जाएगा. The enthalpy change for the reverse reaction, नहीं, रिवर्स रिएक्शन. नाउ दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, तो ऊपर की तरफ जाएगा ना सेम अमाउंट, तो इट्स गोइंग टू बी प्लस 50. याद रखिएगा फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक यानी -10 है तो बैकवर्ड +10 हो. एनर्जी इज ऑलवेज बैलेंस. ठीक है, सो दिस इज डन. कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन. आई होप कि एंथैल्पी चेंजेस के क्वेश्चन, एंथैल्पी प्रोफाइल सेम तरह के क्वेश्चंस ही हैं एंड आई एम श्योर के रिपीटेड है कि आपको इसमें इशू नहीं होगा. दैट्स द लास्ट वन. चलो ये देख लेते हैं आप. ओके, इट सेज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन एन एटमॉस्फेयर, ठीक है, फाउंड टू कार इंजन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सही जहां विच लेवल डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट एंथैल्पी प्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन. इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना. अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इट मींस दैट दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. सो ए और बी में बात करते हैं. The reaction is endothermic activation. अच्छा, what's wrong in B? Delta H इसने negative बनाई है, although the delta H value is positive. Excellent. Let's move forward. Good है. अच्छा, आगे आप लोगों को next is basically the topic which is called measuring enthalpy change और energy change. ठीक है. And this is the experimental technique that we are going to discuss. And this experimental technique is called calorimetry. This is called calorimetry. And the instrument used in this experiment is called a calorimeter. पता है क्या होता है calorimeter? A normal cup, coffee cup. We don't need anything. हमें सिर्फ एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें हीट लॉसेस कम हो. That's it. और एक थर्मामीटर चाहिए बस. हाँ, अब वो कैलोरीमीटर इसलिए कह रहे हैं कि वी ट्राई टू मेक दैट कप और दैट कंटेनर इन अ वे कि उसमें से हीट लॉसेस कम हो. अब वो कोई थर्मोस टाइप का हमने इंस्टॉलेशन लगा दी. नॉर्मली इन लैब एंड इन एएस लैब जो आप लोग करेंगे, आप करेंगे ये कि यू टेक अ पॉलीस्टीरीन कप. पॉलीस्टीरीन कप इज नॉर्मल कॉफी कप, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हीट लॉसेस थोड़े से कम हो रहे हैं. वी सीन द व्हाइट वाला कप, उसमें चाय बहुत देर में ठंडी होती है. दैट्स द पॉलीस्टीरीन कप. And we place that polystyrene cup into an empty beaker. इसको ना एक empty beaker में हैंग कर लेते हैं. इससे दो फायदे होते हैं. एक तो ये कॉफी कप बहुत लाइट वेट होता है, गिर जाता है. अगर आप इसे किसी एक ग्लास
एम्प्टी ग्लास के बीकर में रख देंगे तो उससे स्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात, एयर डायरेक्टली इसके साथ कोलाइड नहीं करेगी, देयर इज अ वैक्यूम और देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम, अगर इफ यू प्लेस इट इन एम्प्टी कप तो हीट लॉसेस कम होते हैं, सही है। सो दिस इज बेसिकली अ पॉलीस्टीरीन कप, and this is an empty beaker. Now, if let's suppose there's a reaction taking place between A, which is in a liquid form, and B in a liquid form, forming C plus D, and we need to find out how much energy is released or absorbed if these two react together. Let's suppose we have taken 50 centimeter cube of A and we are adding 50 centimeter cube of B in this. So हम क्या करते हैं? We first add A और हम उस A का इनिशियल टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर, एंड क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा भाई टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए? थर्मोमीटर, ठीक है। सो वी मेजर द इनिशियल टेम्परेचर, सो दिस इज T1 हमारे पास आ जाएगा, एंड देन वी एड द रिएक्टेंट B, and after adding reactant B, we just wait for a while and we note down the maximum rise or fall in temperature. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा T2. ओके, बिफोर द रिएक्शन इज T1, किसी एक रिएक्टेंट का आप टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, एंड आफ्टर द रिएक्शन इज T2, एंड वी फाइंड आउट द डेल्टा T वैल्यू व्हिच इज T2 माइनस T1, ठीक है। द एंटायर एक्सपेरिमेंट, ये पूरा कैलोरीमेट्री का सेटअप, पूरा एक्सपेरिमेंट टास्क सिर्फ इतना है कि हमें टेम्परेचर पता चल जाए कि टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इफ यू हैव अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गौर से सुनिएगा, इफ यू हैव अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन you will notice the rise in temperature or the fall in temperature, rise। अच्छा, अब देखो एक्सोथर्मिक में तो एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में एब्जॉर्ब होती है, सॉरी उल्टा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है, तो थर्मामीटर पे राइज क्यों आ रहे हैं? एनर्जी तो सिस्टम से बाहर जा रही है। सेंस करता है, यही की पॉइंट क्लियर होना चाहिए। थर्मामीटर गिव यू द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नॉट द सिस्टम। सिस्टम का मतलब है द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, देयर इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो थर्मामीटर गिव्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। फॉर ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी जब सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में जाती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर राइट। फॉर ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में आती है तो टेम्परेचर फॉल हो जाता है, ठीक है। तो एक की पॉइंट हम यहां लिख लेते हैं, ये हमें पूछा जा सकता है। थर्मोमीटर गिव्स द टेम्परेचर of surrounding. So exothermic reactions में you always find rise in temperature. Surrounding का temperature rise हो जाएगा। For all endothermic reaction, you always see fall in temperature. ठीक है बेटा, ये याद रखने वाली बात इसलिए है कि इसमें कुछ एक दो चीजें आगे जाके आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। सो इफ यू नो दैट एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर राइज होगा बिकॉज सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर फॉल होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट, आफ्टर दिस वी फाइंड आउट द हीट एनर्जी। हाँ सिर्फ क्योंकि टेम्परेचर हम देखिए, वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, समझने की बात है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? इन इन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे ही है ना। बट वी कैन नॉट मेजर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग पे काम कर रहे होते हैं। ये सारा काम कैलोरीमेट्री में सराउंडिंग पे हो रहा है। जितनी सराउंडिंग की एनर्जी का टेम्परेचर राइज हुआ, इसका मतलब सिस्टम से उतनी एनर्जी कम हो गई। जितना सराउंडिंग के टेम्परेचर डिक्रीज हो, इट मींस दैट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज।
तो हम सारा काम किस पे करते हैं, सराउंडिंग पे कर रहे होते हैं। इसलिए आगे चल के आप देखेंगे हम इसका साइन चेंज करेंगे। एंड हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब दोनों की बात हो रही है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और Q का फॉर्मूला होता है MC डेल्टा T। डेल्टा थीटा, आई थिंक यू डन देन दिस वन इन फिजिक्स। ठीक है, यहां पर Q तो हमने बता दिया एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड है। M इज बेसिकली द मास ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसका मास इन ग्राम्स। नाउ C is the specific heat capacity of water. Why water? Because we always used all solution in aqueous form. तो aqueous form की वजह से हम specific heat capacity of water लेते हैं, which is 4.2 joules per Kelvin per mole. In some places you find it 4.18 joules per Kelvin per. Whatever the value is given, you have to use that value. Most commonly is 4.2. And delta T is the change in temperature. ठीक है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो स्पेसिफिक डिफाइन हो गया। अब इसी फॉर्मूले में इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज, ये तो एनर्जी चेंज था ना, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज, अच्छा क्यू का यूनिट होता है जूल्स, ये यहां लिख लीजिएगा, आंसर आएगा आपके पास जूल्स में। एंथैल्पी चेंज व्हिच इज डेल्टा एच, सो आप क्यू वैल्यू को माइनस करेंगे। माइनस क्यों लगाएंगे, बिकॉज वी अप्लाई द क्यू ऑन द सराउंडिंग। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। यहां याद रखना एनर्जेटिक्स में द माइनस साइन एंड द प्लस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी। माइनस का मतलब है कमिंग आउट ऑफ द सिस्टम और प्लस का मतलब है गोइंग इनटू द सिस्टम। ये मैग्नीट्यूड का नहीं है, यानी +50 और -50 इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं। +50 का मतलब 50 किलो जूल्स एब्जॉर्ब हुई, -50 का मतलब 50 किलो जूल्स इज रिलीज्ड। जूल्स, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जे के इनवर्स एंड मोल इनवर्स, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इस Q को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट से। इफ यू हैव टू रिएक्टेंट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो यू कैन डिवाइड इट बाय एनी, एक से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम इस फॉर्मूले पे बाद में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द M व्हिच इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन आप क्या लेंगे। फॉर सम रीजन मैं यहां पर दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। इफ आई रिमेम्बर फिजिक्स में Q इज इक्वल टू -MC डेल्टा T थीटा यूज करते थे आप लोग, है ना। वो माइनस मैंने यहाँ एंड में लगाया, बस इतना फर्क है। ठीक है, आगे लॉजिकली आपको समझ आएगी। देखो अगर टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। डेल्टा T की वैल्यू आएगी नेगेटिव, Q की वैल्यू होगी नेगेटिव, तो जब यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा H क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ डेल्टा H बाय प्लेसिंग अ माइनस साइन हियर। ये जो डेल्टा H के साथ लगा है। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन की। आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस फॉर्मूला, जिसमें आप लोगों से मोस्ट कॉमनली एरर होते हैं। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन में there is a type of reaction case one. Let's say you have a reactant A in a liquid form and reactant B is also in a liquid form making some product. ठीक है, ये chemical reaction है। A और B मिलके product मिला। Let's suppose you have taken like 50 centimeter cube of liquid A and you added 50 centimeter cube
of liquid B. So the total volume of this solution is 100 centimeter cube. तो आप m की जगह पर यूज करेंगे 100 ग्राम. ठीक है, वट एवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द 100 टू द सेम cm क्यूब इज इक्वल टू ग्राम. यानी मैं ये कह रहा हूं कि इन दिस केस 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम. क्यों ऐसा? क्यों? हर बात का पता होना चाहिए ना कि इफ वी आर टेकिंग 100 cm क्यूब इक्वल टू 100 ग्राम, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा मुझे बताओ, वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, in which formula the mass of volume is related to it? Density. Excellent. So as we are dealing with the aqueous solution, the density of water, pure water, is 1 gram per cm cube. यानी 1 gram of water किसके बराबर होता है? It's always equal to 1 cm cube. और हम यहाँ पे डील कर रहे हैं in all aqueous system, तो हम जितना वॉल्यूम होगा उसे मास इन ग्राम में आराम से ले सकते हैं. Nothing. ठीक है जी, ये बात समझ आई. केस 2, एंड दिस इज अ कॉमन केस, कि अगर आपके पास बच्चे क्या बच्चे हो गए, इफ यू हैव अ रिएक्टेंट A in a liquid form like HCl and you are adding reactant B in a solid form like magnesium carbonate add किया forming magnesium oxide, carbon dioxide and water, तो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी. सो एग्जांपल ये है कि आई हैव टेकन 50 सेंटीमीटर क्यूब of A and I added 2 gram of this. So मास की जगह पर मैं क्या यूज करूंगा? 52 और 50, दो ऑप्शन हैं. 52 तो एक कॉमन आंसर है. अगर 52 होता तो मैं एक दो में चला जाता कि हाँ 52 यूज करेंगे. लेकिन याद रखिएगा कि एज द टोटल वॉल्यूम इज 50 cm क्यूब, ओके, सो हम यहां पर मास की जगह पर वी यूज 50 ग्राम. डू नॉट इंक्लूड द मास ऑफ सॉलिड. ठीक है, सो यहां पे ये बात लिखेंगे, डू नॉट इंक्लूड द मास ऑफ सॉलिड. देखिए, वी आर considering the total volume of the solution as its mass in gram. हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? टोटल वॉल्यूम को उसका मास इन ग्राम कंसिडर कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी नॉर्मली डू. अब देखिए, if you are adding 2 gram of B in A, the volume remains almost same. Why? Because B A से रिएक्ट कर रहा है. किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉलिड ऐड करने पे उस वक्त चेंज होता है जब वो सॉलिड ना उसके अंदर डिसॉल्व हो ना उससे रिएक्ट करे. आपने वो थर्स्टी क्रो वाली मिसाल पढ़ी है ना? एक नहीं, एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, है ना? तो फिर उसने क्या किया? उसने पत्थर डाले. इफ दैट स्टोन या जो पत्थर उसने डाले थे, अगर वो वाटर से रिएक्ट कर जाते तो पानी ऊपर नहीं आता. अगर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते पानी ऊपर नहीं आता. ठीक है, तो here we are talking about the enthalpy change of a reaction. So basically this solid getting dissolved, that's why the volume remains same. Okay, then case 3. अब और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि वी आर नॉट कंसिडरिंग गैसेस इन दिस. ये एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है. ठीक है, इसमें गैसेस इन्वॉल्व नहीं होती. नाउ case 3. Okay, case 3, if we have A in a solid form plus B in a solid form, तो हम M की जगह पर, let's suppose you have 2 grams of A and you are adding 2 grams of B. तो M की जगह पर क्या यूज करेंगे? हम कर क्या रहे हैं इस टॉपिक में? हाँ हाँ हाँ, बोले बोले. क्या नहीं करेगा? नहीं, हम कर क्या रहे हैं इस टॉपिक में? वी आर मेजरिंग द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. टू सॉलिड नेवर रिएक्ट, दे फॉर्म अ मिक्सचर. दो सॉलिड कभी भी रिएक्ट नहीं करते. क्यों नहीं रिएक्ट करते? व्हाई सॉलिड डू नॉट रिएक्ट? Because we studied in a rate of reaction for any formation of product, the particle must collide with one another. Solid में तो particle अपनी position में fix होते हैं, मूव ही नहीं कर सकते. जब मूव नहीं करेंगे तो कोलाइड नहीं करेंगे. हाँ,
अगर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एंड दे आर इन अ सॉलिड फॉर्म, एज यू ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर दे स्टार्ट मूविंग एंड दे स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? सो दिस इज अ इनवैलिड केस बिकॉज two solid won't react, they form a mixture and we are talking about the enthalpy change of a chemical reaction. यहाँ तक बात समझ में आ गई? So Q is equal to mc delta T. The C value is 4.2 or 4.18. M is the volume of solution which is equivalent to the mass in gram and delta T. अब next बात है हमारे पास change in temperature. इसमें भी बहुत सारे mistakes होती हैं. Change in temperature. Delta T. Okay, let's taking an example. Let's suppose T1 is 25 degrees Celsius, T2 is 35 degrees Celsius. So the delta T value is 10 degrees Celsius. ठीक है जनाब, ऐसे ही होगा. Now, as you know that the unit of specific heat capacity of water is joules per Kelvin. So I need the delta T value is in Kelvin. So मैं क्या करूं? कितने Kelvin हो जाएगी delta T की value? How much is the value of delta T in Kelvin? Kelvin के लिए हम एक नंबर यूज करते हैं 273. ठीक है, 273 ऐड करते हैं तो 273 ऐड करके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 283. लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि वैल्यू 10 केल्विन के इक्विवेलेंट ही होती है. हमेशा याद रखिएगा, we never add 273 in change in temperature to convert into a Kelvin. अगर आपको Kelvin में चाहिए, so you have to add 273 in the initial value and 273 in a final value. सही है? तब जाके आपके पास आप देखेंगे the numerical value of delta T in degree Celsius and in Kelvin is same. कभी भी चेंज नहीं होती क्योंकि माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. So delta T is same in degree Celsius and in Kelvin. So no need to convert. तो ये जी, तो आप इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे. जितने पॉसिबल चांसेस ऑफ एरर थे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ऑलमोस्ट वो सारे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए. लेट्स टेक आउट योर कैलकुलेटर एंड डू 2-3 क्वेश्चंस. बल्कि कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है. सो अच्छा जनाब, यहाँ से शुरू से ही स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स सी. नो, नॉट दिस वन. क्यूबिकल एमसी डेल्टा टी. Question I am searching for the most simple one. Okay. चले. Question number 31. Is equal to MC delta T का question है. In this question it says a calorimeter experiment 1.60 gram of the fuel is burned. ठीक है.
45% ऑफ द एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय, टोटल जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उसकी सिर्फ 45% वाटर ने एब्जॉर्ब करी। बेसिकली इंथैल्पी, ये जब हम कंबशन के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो उसमें हम ये वाला सेटअप यूज करते हैं। दिस इज सेटअप, ठीक है। हम करते क्या है, हम फ्यूल को बर्न करते हैं एंड वी अज्यूम दैट ये सारी एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड वी अप्लाई Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सही है। जब हमारे पास Q आ जाता है तो हम उसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास डेल्टा H आ जाती है। बात समझ आ रही है। तो उसी इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में वो बात कर रहा है कि इतनी एनर्जी जो है वो 45% इज एब्जॉर्ब। आगे चलते हैं। 200 grams of water whose temperature rises from this or this. So if we apply Q is equal to mc delta T, Q is equal to m 200 because the volume of water or the mass of water is 200 multiplied by 4.2 multiplied by delta T, which is 66 minus 18. So Q बताओ कितना आ रहा है? हाँ, 40,320 joules. सही है। But make sure that you know that this is only 45% of the released amount of energy. Let's find out how much is the 100%. How much is the 100%? So multiply by 100 divided by 45. I think it's 5, 6. 89,600 joules. ठीक है? And this energy is released by 1.6 gram. And they ask you about how much energy is released by 1 gram. So it's divided by 1.6 से divide कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। And answer is 56,000. 1.6 gram. Okay, 1.6 gram of fuel is burned in an air. 45% of energy is released, is absorbed by 200 grams of water. हाँ, वो टोटल मांग रहा है, वो ये नहीं मांग रहा कितनी एब्जॉर्ब हुई। अगर वो मांग रहा होता कितनी एब्जॉर्ब हुई तो हम Q इक्वल mc डेल्टा T में जो Q आंसर आ रहा है, which is 40320, ये आंसर होगा। उसने कहा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज द टोटल एनर्जी रिलीज पर ग्राम बाय द फ्यूल, और उसको पता था कि 45% ही एब्जॉर्ब हुई है, 55% इज गेटिंग वेस्टेड, तो हमने टोटल की तरफ गए। सिमिलर फॉर्मेट पे कैन यू डू दिस क्वेश्चन, दिस वन? It says use of data booklet. Data booklet is used to find out the value of C, which is 4.2. A student carried out an experiment to determine the enthalpy change for the combustion of methanol. सही है जनाब, this is the setup, and as per this setup, this is the data given. I need the Q value for this one. अब मुझे बताइए कि M कितना यूज करेंगे, जस्ट Q निकालना है सर, ठीक है, नो पर ग्राम, नथिंग एल्स। तो M कितना होगा इसमें? Mass of glass beaker plus water is 150 and mass of glass beaker is 50. The water is 100. Multiply by 4.2 multiply by change in temperature, which is 53 minus, sorry, 53 minus 20, 33. So Q आपके पास आ जाएगा बेटा, हाँ, 13,000. Yes, 13,860. Can you please do it with the 4.18? हाँ, so they use 4.18. As I said कि it depends कि उस particular year की data booklet में what value is given for this particular. ठीक है, यहाँ तक clear है? कर लोगे enthalpy changes के questions? Q is equals to mc delta T, and there's lots of practical in the theory. In practicals, they ask you to calculate this enthalpy energy released by Q is equal to mc delta T. बहुत common है और हर साल almost पूछा जाता है। रिपीटेड वन, एक क्वेश्चन और मुझे नजर आया था उसका।
Okay, this one. And that's the last one we're going today. Okay. A student mixed 25 cm cube of 0.35 0 mole per dm cube sodium hydroxide and 25 cm cube of 0. Hydrochloric acid. As you can see, the number of moles of sodium hydroxide and HCl is same. इसका मतलब आप किसी के भी नंबर मोल से डिवाइड कर सकते हैं Q को to find out delta H. Now it says the temperature is risen by 2.5 degrees Celsius. ठीक है जनाब, the C value is 4.2. So we apply Q is equals to MC delta T. Q is equals to M. M is 50. 50 because they added 25 plus 25 total volume multiply by 4.2 multiply by delta T which is 2.5. Q आपके पास आ जाएगा बेटा 588 joules 525 joules. ठीक है, फर्स्ट स्टेप करें, इसे क्लोज जूल्स में कन्वर्ट कर लें. 0.525 क्लोज जूल्स. ठीक है, ये तो आ गया आपके पास Q. नाउ नंबर ऑफ मोल्स निकालिए. C into V. Number of moles is equals to 0.350 into 25 divided by 1000. Number of moles आ जाएंगे -3. Okay, these are the number of moles. अब आपने क्या किया जनाब, डेल्टा H is equals to minus Q divided by number of moles. So delta H is equals to minus 0.525 divided by number of moles, 8 points. Answer is B. The answer is B. So this is the answer. This is a sample calculation. हमेशा Q is equal to MC delta T के बाद जब आपको delta H find out करना होगा, if the moles of both reactant are same, आप किसी के भी मोल से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर मोल्स डिफरेंट होंगे then you have to work out. एक की पॉइंट बस याद रखना, if the reaction is between solid and liquid, तो हमेशा solid limiting reactant होता है. ठीक है, अगर एंथैल्पी चेंज उसके मोल से डिवाइड करेंगे. इफ यू हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ कंबस्शन, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, तो जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है उसके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करता है. सिर्फ दो लिक्विड के केस में आपको थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. यानी इफ यू हैव अ रिएक्शन बिटवीन सॉलिड एंड अ लिक्विड, Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड. इफ यू हैव अ रिएक्शन ऑफ कंबस्शन, Q डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्यूल. बस ये दो की पॉइंट याद रखिएगा. चलिए जी, वी कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट सेशन.